You know that uneasy feeling which you get in the pit of your stomach when you are on a roller coaster and it goes up and down. Today in markets, most of us are having a similar feeling when we see markets being so volatile that it moves 1,000 points up and down every couple of months and weeks, which is preventing a lot of investors from entering market and keeping their money idle in savings bank account and fixed deposits. To give you a perspective, today most fixed deposits are giving you somewhere between 5.5% to 6% rate of return. With 30-35% taxation, it ends up with a post-tax return of just about 3.5%, which is far away from 7% inflation, right? So in this video, we're going to talk about 3 strategies which you can use to alternate your fixed income portfolio without compromising on returns, taxation, but with liquidity, better liquidity. Hi, this is Krishna Makharia, CFA, Executive Director and Head of Research with iVentures Capital. Before we start this video, I want to give a small disclaimer that all the contents of this videos are purely for informational purposes and is not an investment advice. To invest and take investment decisions, always hire a coach and an investment advisor. The first option is debt funds. Just how in equity mutual funds, you buy a portfolio of stocks, a debt mutual fund helps you buy a portfolio of bonds. Here, you're not focused on buying one bond or two bonds. When you put in a money into a debt fund, your money gets distributed in n number of bonds. So why debt funds? Number one, they offer complete liquidity compared to individual bonds. Number two, it is being professionally managed. Number three, you get indexation benefit, which makes it effectively tax-free if you hold it 3 years and above. I'm going to explain about this later in the video, and I've also done a separate video to explain indexation benefit. अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो तो मैं आपको complete range of fixed income bond funds बता रहा हूँ. तो अगर आपकी नीड अगर 1 साल की है तो आप भारत बॉन्ड ETF 2023 कंसिडर कर सकते हो जो 1 साल में मैच्योर होगा. अगर आप 5 साल कंसिडर करना चाह रहे हो तो PSU SDL इंडेक्स 2027 कंसिडर कर सकते हो. या आपकी नीड अगर 10 साल की है, आप 10 साल के लिए पैसा पार्क करना चाहते हो कंजर्वेटिव फिक्स्ड इनकम के लिए, तो आप भारत बॉन्ड ETF 2032 कंसिडर कर सकते हो. तो आप इसका अगर रेंज देखोगे रिटर्न का, तो 1 year प्रोडक्ट इज अवेलेबल एट 6.28%, 5 year प्रोडक्ट इज अवेलेबल एट 7.28% एंड 10 year प्रोडक्ट इज अवेलेबल एट 7.7%. तो अगर आप अपनी नीड बेस्ड इसको मैप करोगे तो दिस वर्क्स आउट वेरी वेल फॉर यू. एक क्वेश्चन आपके मन में ज़रूर आ रहा होगा कि कृष्णा, क्या ये पैसा लॉक हो जाएगा? जी नहीं, ये पैसा कंप्लीटली लिक्विड है, बट अगर आप टाइम होराइजन के साथ अपनी मैच्योरिटी को मैप करते हो तो इट वर्क्स आउट वेरी वेल फॉर यू. बट इन द मीन वाइल, जब कभी भी आपको कोई इमरजेंसी आती है, विद इन अ क्लिक ऑफ दिस बटन, विद इन 2 working days, द मनी विल कम टू योर बैंक अकाउंट, राइट? In my experience, working with so many investors, what we have realized is किसी को भी ना अपने पूरे पैसे की एक साथ रिक्वायरमेंट नहीं होती है. जैसे अगर आपके पास 50 लाख की FD है तो कोई भी इमरजेंसी में आपको पूरे 50 लाख की ज़रूरत एक साथ नहीं पड़ेगी. तो हम जनरली क्या करते हैं, इसकी बकेटिंग कर देते हैं. जैसे 1 to 3 years में हम थोड़ा पैसा रखते हैं, 3 to 5 years में हम थोड़ा पैसा रखते हैं और 5 year अबव थोड़ा पैसा रखते हैं. इससे क्या होता है कि आपकी यील्ड एनहांसमेंट हो जाती है, क्योंकि अगर आप किसी को 1 साल के लिए लेंड करोगे पैसा तो आप कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करोगे, वर्सेस अगर आप किसी को 5 साल के लिए पैसा लेंड करोगे तो आप ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करोगे. तो जैसे आप ऐसे बकेटिंग करते हो तो आप अपनी यील्ड को एनहांस कर सकते हो, आपको लिक्विडिटी में कोई दिक्कत नहीं होती है. तीसरा, आपका टैक्स डिस्टर्ब नहीं होता है. अभी आप सोच रहे होंगे, क्या ये पैसा सेफ है? कृष्णा, क्या मेरा पैसा वापस आएगा? तो व्हेन इट कम्स टू लेंडिंग मनी टू समवन, the biggest thing that you have to consider is, are they in a capacity to return the money or not? इसको हम फाइनेंशियल टर्म्स में क्रेडिट वर्दीनेस बोलते हैं. जिस तरीके से आपके इक्विटी फंड्स डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं, जैसे मिड कैप फंड, लार्ज कैप फंड, मल्टी कैप फंड, जो अलग अलग सेट ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरह डेट म्यूचुअल फंड्स में या डेट फंड्स में भी डिफरेंट कैटेगरीज होती है.
बेस्ड ऑन किसको आप पैसा लेंड कर रहे हो। तो इन दिस वीडियो आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट ओनली गवर्नमेंट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट रिलेटेड बॉन्ड्स, जिसमें पैसा सिर्फ गवर्नमेंट को जा रहा है, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स में जा रहा है, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जिसको हम CPSE भी बोलते हैं उसमें जा रहा है। तो इफ यू लुक एट माई स्क्रीन you see few of the bonds that are available, which are NABARD, Exim Bank, Power Finance Corporation, HUD, Indian Oil Corporation, REC, so these are all CPSE, Central Public Sector Enterprise. If you look my screen again, I'm showing you few of the bonds that are all government related, in the sense Indian National Government 2028 का बॉन्ड, इंडियन नेशनल गवर्नमेंट का 27 का बॉन्ड, इंडिया का ट्रेजरी बिल्स, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को लोन, तेलंगाना गवर्नमेंट को लोन, केरला गवर्नमेंट को लोन। सो ऑल दीज बॉन्ड्स हैव एम्बेडेड गारंटी बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स। तो यहाँ पर क्रेडिट रिस्क क्लोज टू जीरो है, तो ज़रूर आपका पैसा सेफ है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई डेट म्यूचुअल फंड्स कंपेयर टू फिक्स्ड डिपॉजिट। नंबर 1 इज लिक्विडिटी। माने जब आप अपनी फिक्स डिपॉजिट बनाते हो और आप 50 लाख की फिक्स डिपॉजिट बनाते हो, तो आप अगर इसमें से 10 लाख रुपए निकालना चाहते हो तो आपको पूरी फिक्स डिपॉजिट ब्रेक करनी होती है। माने आपको प्री मैच्योर चार्जेस देना होता है अपनी कंप्लीट फिक्स डिपॉजिट पे। बट डेट फंड्स में आप पार्शियल रिडेम्पशन भी कर सकते हो। नंबर 2 इज टैक्स एडवांटेज। गवर्नमेंट क्या बोलती है, फिक्स डिपॉजिट में अगर आप 7% कमा रहे हो तो आपको पूरे 7% पे 30% या अपने टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना है। यहाँ पर डेट म्यूचुअल फंड्स में आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है। इसमें गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आप 7% कमा रहे हो और इस दौरान इन्फ्लेशन अगर 6% है तो आपकी रियल कमाई सिर्फ 1% की है, तो आपको सिर्फ टैक्स ये 1% पे देना होगा, वो भी फ्लैट रेट है 20% का। तो अगर आप हिस्टोरिकली कंपेयर करते हो, सिर्फ टैक्स एडवांटेज की वजह से आप 1.5% एक्स्ट्रा कमा सकते हो। माने 1 करोड़ के ऊपर ये 1.5 लाख रुपए हुआ हर साल का, तो इंटू 3 years इज अबाउट 4.5 लाख रुपीज। द सेकेंड सोल्यूशन इज रीट्स। रीट्स माने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें आप छोटे अमाउंट के थ्रू भी बड़े रेजिडेंशियल एरियाज में, बड़े कमर्शियल एरियाज में अपना हिस्सा पा सकते हो। एंड यू ऑल नो एज इंडियंस वी आर क्रेजी अबाउट प्रॉपर्टीज एंड रियल एस्टेट। बट अगर आप इंडिया में कंपेयर करोगे, रेजिडेंशियल प्लॉट्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स आपको 2 से 2.5% की रेंटल यील्ड्स देते हैं, जिसमें आपको 30% टैक्स भी देना होता है। और ऑन द अदर साइड कमर्शियल रियल एस्टेट विच इज स्टिल बेटर, विच कैन गिव यू अबाउट 6 to 7% रेंटल यील्ड, बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि अगर आपके एरिया अगर टेनेंट फ्री रह जाता है तो नेट यील्ड कम हो जाती है। इसको रिजॉल्व करने के लिए देयर इज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसमें ये अपने रियल एस्टेट के पोर्टफोलियोज को मैनेज करते हो। जैसे आपने देखा कि डेट म्यूचुअल फंड्स में पोर्टफोलियो ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, यहाँ पर पोर्टफोलियो ऑफ प्रॉपर्टीज होती है जो इनकम देती है, राइट। तो इंडिया में 3 रीट्स बहुत ही प्रोमिनेंट है, जो है एम्बेसी रीट, माइंडस्पेस रीट और ब्रुकफील्ड इंडिया रीट। ये सारे रीट्स बहुत ही हेल्दी डिविडेंड देते हैं इन द रेंज ऑफ 5 to 5.7%, विच इज टैक्स फ्री इन नेचर। तो 5 to 5.7% टैक्स फ्री, जहाँ पे आपकी रियल एस्टेट में पार्टिसिपेशन भी है, कल के दिन यहाँ पर कैपिटल अप्रिसिएशन होता है, तो ये भी आपको रिटर्न के तौर पे मिलेगा। एंड इट इज़ वेरी इजी टू कंज्यूम, वेरी इजी टू पार्टिसिपेट इन टू, जो आप अपने स्टॉक्स की तरह एक्सचेंज पे अपने डीमैट अकाउंट में खरीद सकते हो। और बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज जो करोड़ों में मिलती है, वहाँ पर 2-2.5 लाख रुपए से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो एक हिस्सेदारी के लिए। द थर्ड सोल्यूशन इज इनवीट्स। इनवीट्स माने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जिस तरीके से हमने रीट्स के बारे में डिस्कस किया, जो एक पोर्टफोलियो होता है प्रॉपर्टीज का, उसी तरह इनवीट्स है पोर्टफोलियो इंफ्रास्ट्रक्चर का। माने अगर किसी को वेयर हाउसेस क्रिएट करने, एक एसईजी में मल्टीपल नंबर ऑफ वेयर हाउसेस क्रिएट करने, तो वो इनवीट्स के थ्रू पैसा पूल कर सकता है और ये वेयर हाउसेस क्रिएट करके इससे जो कैश फ्लोज आना है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है एक प्रोडक्ट की तरह। उसी तरह आप देखोगे कि रोड है, रोड जब कंस्ट्रक्ट होगी तो पैसा पूल होगा,
टोल्स के थ्रू जब रेवेन्यू कलेक्ट होगा तो उसको बंडल किया जाएगा और प्रोडक्ट की तरह इनवीट बना दिया जाएगा। तो इंडिया में 3 बहुत ही प्रोमिनेंट इनवीट्स है, जो है पावर ग्रिड, इंडी ग्रिड और IRB इंफ्रास्ट्रक्चर का। पावर ग्रिड और इंडी ग्रिड दोनों ही पावर रिलेटेड ग्रिड्स है, जिसमें पावर सप्लाई, पावर जनरेशन और सप्लाई के थ्रू जो रेवेन्यू आता है वो डिविडेंड के तौर पे दिया जाता है। नंबर 3 इज IRB, जो रोड टोल्स को कलेक्ट करता है और उससे जो कैश फ्लो जनरेट होता है उसको डिविडेंड की तरह देता है, राइट। सो ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर कंसिस्टेंट इन नेचर, all these products are different in the way they operate but are consistent and tax efficient. So if you look at track record, all of them are giving healthy dividend yields with a scope of capital appreciation, right? To cover REITs and InvITs in a detailed fashion, I'll be doing a separate video which you can check out for more depth. So I hope you really enjoyed the ways you can alternate your fixed deposit with liquid, tax efficient and consistent return providing instruments. Hit the like button if you found this information informative, and share this with your friends to spread the knowledge. And you can also subscribe to our channel to visit and hear out more interesting videos in future. Thank you.